welcome to a new episode of the Mythpack Podcast, a Spotify original. और आज मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत ही ज्यादा घाई में हूँ. चलो जल्दी जाते हैं बिकॉज लेट हो गया ऑलरेडी. भुवन के अरे चुप ना, मेरे को तू हाइप बिल्ड करने को नहीं देती. ठीक है. So guys, हमें आज ही समझा कि भुवन बाम इज इन मुंबई. ये मुझे समझा एंड मेरे पास उनका नंबर है, तो मैंने उनको कॉल किया पूछने के लिए. रैंडम लिया, मैंने तीर मार दिया कि why would you again come on the podcast इतने जल्दी. हमारे तो बस 18 एपिसोड हुआ है, 18-19 एपिसोड हुआ है. मैंने सोचा था उनको लेना है पॉडकास्ट पे, पर थोड़े टाइम के बाद बट मैंने बस कॉल किया उनको और मैंने उनको पूछा कि भुवन सर आप मुंबई में हो, पॉडकास्ट करें क्या? गेस व्हाट, he agreed to do a podcast, but the thing is that he is leaving for Delhi tomorrow. Yeah, he's leaving for Delhi tomorrow. So हमारे पास आज का दिन है, तो अभी हमें अभी समझा है और हम लोग अभी निकल रहे हैं हमारे घर से. और उर्मिला बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, सुपर एक्साइटेड है वो इस चीज के लिए. उसकी खुशी रुकी नहीं जा रही. क्या तू प्लीज भुवन के सामने जाके फूट मत, क्योंकि तू एक्चुअली इतनी एक्साइटेड लग रही है. मुझे उसको मिलने का है, देखने का है मेरी आंखों के सामने. एंड आई जस्ट कांट वेट टू मीट हिम. ओह माय गॉड. लेट्स गो गाइस. So guys, right now we are with Bhuvan, and before I start this podcast, can you say hi? Hi. थोड़ा पास से थोड़ा. Hi. So before we start this podcast, मैंने पहले डिसाइड किया था कि before we talk about stuff, उर्मिला is just going to like सब कुछ वो जो भी फैन मोमेंट्स है सब कुछ वो निकालने वाली है और फिर then we can like peacefully talk. Go for it, उर्मिला. I'm literally shivering and I'm scared. Bhuvan is sitting right in front of me. मैं उसको उनके आँख में भी I'm not looking because What have I done? Why? No, first of all मैं लिख के आई हूँ because I'll forget. I want to tell everything. Okay. First is I can't believe that I'm sitting right in front of you. It's really my pleasure and honor. इसने literally लिख के लाई है. To be sitting in front of you. I'm very happy today. And it's a very special day for me. Thank you so much, Bhuvan, for meeting me. And I'm a really big fan of you. There was a phase in my life when, I don't know, 3-4 months, I was constantly watching your interviews just to see you talk. Okay. Every interview you used to talk the same thing, but I used to be like, I want to see Bhuvan talk. And I like constantly. And I just want to tell you that I've loved Indora. After watching the first episode, the first thing came in my mind is that this one person is doing so many characters, how tiring it can be, and that was the most trippy part. So congratulations on the big success of Dindora, and thank you for being a part of this podcast. Okay, so जितने भी दर्शक सुन रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि उर्मिला बहुत अच्छी दोस्त है मेरी और उर्मिला खामखा नर्वस हो रही है. Are you telling? बट अपॉलॉजीज कि उर्मिला को मैंने कुछ पूछा नहीं क्या खाएगी क्या पिएगी, बट ऑमलेट आ रहा है. No, just sitting here and just seeing you is itself a treat. Thank you. So मैंने actually decided, so we came here like around half an hour back and मैंने ऐसे decide किया था start करने का podcast that always it's my job. Okay, by the way, this is I think like the 10th or 15th episode something. हमने ज़्यादा episodes किए नहीं हैं अब तक and I'm getting to like do a podcast with you. So I'm new to all this and it's my job to make the other person comfortable in the podcast. मैं ऐसे सोच के आया था कि today it's your job to make me comfortable because it's सबका fanboy moment here. नहीं, but we have not met before, but we have interacted before. Yeah. और अगर किसी के साथ आपका वर्चुअली इंटरेक्शन में दिल आ जाए किसी पे, तो मतलब बंदा कितना सही होगा. तो मिथपैट वो आदमी है कि मैंने गेमिंग के अराउंड ही बात करी, हमने ग्रुप्स में ही बात करी हमेशा, है ना, वो जूम कॉल्स पे. तो अगर वहीं वाइब आ गई है मुझे किसी के साथ या मिथिलेश को मेरे साथ, तो So recently we did a stream and वो stream के बीच में you said this line. There were a lot of gamers there and you said this line and I know you must have just said it in the, you also heard that, right? You must have said it in the flow and all that, but for me it was like really big, like Mithilesh Mythpad or something, and ये मेरे दिल के बहुत करीब है. And like we have not even interacted a lot, but that line just felt so good. That's why मुझे वही याद है, क्योंकि मुझे पता है कि अपना इंटरेक्शन उतना ही हुआ है. Yeah.
एंड अगर उस इंटरेक्शन में ही वाइब आ गई है तो इट मीन्स यू आर अ स्पेशल गाय. You know, so we started this channel around 2-3 years back, and तब से like Urmila has told me multiple times this thing that Mithilesh, okay, I'll just start talking in Marathi because मेरा एक था कि मेरे को पॉडकास्ट में थोड़ा सा मराठी में बात करना है. अच्छा. कि उर्मिला तू मोठं झाल्यावर तू YouTube मध्ये भुवन सारखा बनणार आहेस. You're going to become like Bhuvan in YouTube. This is like the belief she put in me तब से. And तभी तो मेरे को ऐसा कुछ लगता नहीं था कि okay, I'll make it big on YouTube and all that. But now that I'm doing a podcast with him. It's a very big thing. पण हा तुम्ही मराठीत बोला प्लीज. मला एवढं येत नाही येत. मला वाटलं तुम्हाला येत असेल म्हणजे. येतं पण जेव्हा समोर कुठला अजून स्पष्ट बोलणारा मराठी असतो तर माझी मराठी नहीं निकत. आई हैव टू मिन्स माय वर्ड्स क्योंकि मेरे को इतनी ढंग से आती नहीं मराठी. अच्छा. आता मी तिथे जाऊन आला परवा महाराष्ट्राची हास्य जत्रावर. अच्छा, यू हैड गॉन देयर. हाँ कॉमेडी. हाँ तो आई परफॉर्म्ड एन एंटायर स्केच वहाँ पे एंड आई वाज देयर एज द चीफ गेस्ट. तो मैंने वहाँ खुले में बोल दिया. दे वर लाइक कि यू प्लीज टॉक इन मराठी. तो मैंने वहाँ बोल दिया ऑन एयर कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ बट आई कांट स्पीक फ्लुएंटली बिकॉज आई डोंट वांट टू ऑफेंड पीपल कि ये कैसे टूटी फूटी मराठी बोल रहा है. तो मैंने ये भी बोल दिया कि मेरे को सारे वहाँ क्योंकि स्किट्स देखने होते हैं आपको सब एंड यू हैव टू रिएक्ट ऑन दैट. तो मेरे को 2 सेकंड का लैग आ रहा था क्योंकि आई हैव टू अंडरस्टैंड द लाइन एंड देन रिएक्ट टू इट. बट मेरे को वो समझ ही नहीं आ रहा, इतना तेज सब बोल रहे थे. तो मैं 2 सेकंड बाद हंसता था. और मेरे साथ चीफ गेस्ट है अनूप सर क्योंकि वी हैड गॉन फॉर ढिंडोरा एंड नो वन वाज either some of them were shooting or they were outside of Delhi. So Anup sir was there. मैंने अनूप सर को बोला अनूप सर चलें क्या. कह रहे मराठी यार मुझे तो आती नहीं समझ. मैंने सर थोड़ी बहुत आती है. कह रहा हाँ कॉन्टेक्स्ट तो पता है सारी चीज़ों का. मैं बस फिर So I've already told like couple of my Maharashtrian friends, YouTube friends, this before that I'm so proud कि like Marathi people, Maharashtrians are doing so well and wherever they go, they do like really well. Like they are at the top. Like Rajnikant, his real name is Shivaji Rao Gaikwad. Marathi, म्हणजे महाराष्ट्रीयनच आहेत, but yeah, of course he was in South and all that. Lot of people don't know about him. Lot of people don't even know that Bhuvan Bam, biggest YouTuber, is also a Maharashtrian. म्हणजे हे मला खूप असं प्राऊड फिलिंग येते about this. Actually, it makes us feel proud that like hope. There's a hope. Not hope also. There's a thing that सगळ्यात टॉपला आपण आहोत म्हणजे असं बरं वाटतं ऐकून. हाँ मतलब वही मेरे को उसी बात का एंजाइटी है कि जैसा भी मैंने बोला कि मेरे को इतना स्पष्ट मला येत नहीं बोलता. So you know this show चला हुआ. हाँ, it's favorite show. You know that. Okay, so since long I was thinking this ऐसा कुछ opportunity आना चाहिए जिसमें चला हुआ के कोई एपिसोड में they call like YouTubers and like Marathi YouTubers, Maharashtrian YouTubers, because that makes sense for the show. And then I've been imagining कि Bhuvan, you're sitting there, I am sitting there, and then few more people are sitting there. And now you're telling me you have gone to Hasya Jatra. Yes. It's a good start. Soon. Yep. So how was Dhindora? Like, I saw the first episode, and तभी like we used to talk थोड़ा सा on DM. We both used to talk on DM. That's why मुझे थोड़ा सा ये होता था कि should I message him and tell him that it was. मुझे थोड़ा सा ये होता था कि what will I talk to him and all that. So I messaged Rohit instead. That Rohit, this is a really great show. I can't even imagine how difficult it must have been to play, because in my videos every now and then I keep playing like 2 characters in front of my camera only. I keep doing it. मेरे स्टाइल में वो ऐसा एडिट करके मैं करता हूँ. Then I saw this. There was this one scene, I think from episode 2, I think, जिसमें वो एक्सीडेंट हो जाता है and then you both are going there and उसका कैमरा लेफ्ट राइट जाता है. वो सीन देख के I was like, तभी मैंने मैसेज किया रोहित को कि रोहित ये कैसे किया, ये सब कैसे किया, कैसे, how difficult was it to shoot all of this? So more than that scene, I think the toughest scene to shoot was when Titu Mama holds Bablu ji. Oh, there was this scene. Okay, is this the same scene? अभी मेरे को याद नहीं आ रहा. जिसमें वो पूछता है कि दीदी चाय, कहता है कि मेरी भी करे, वो बाघ बकरी ऐसे करके he holds Bablu ji like this. हाँ, he holds his hand. And Bablu ji reacts like this. वो कैसे किया? वो ऐसे किया. कैसे किया वो? So green screen नहीं है वो. हाँ. It's actually someone else's arm. Oh. So it's a body double. So first I became Titu Mama. हाँ.
and then I held his arm. हाँ. So the cheat code is that you ask the body double to not move at all. Oh. Got it. मैं कब से सोच रहा था ये कैसे करूँ. Got it. Your expressions, body double के expressions, they तो anyway won't come. You can't see his face. You just need his body to be stiff. Yeah. That's what is required, especially when you're doing a VFX scene, जिसके अंदर his involvement is a must. Yeah. So, and then I held his hand. When I became Bablu Ji, I had to act just via expressions. हाँ. Because I had to stay still like him. So I had to just do this. I could do this. अगर मैं थोड़ा और हिलता खत्म तो नहीं खर्चा हो जाता वो भी तो बहुत पैसा लगता उसमें क्योंकि they charge per second. Oh, okay. So VFX is not how much you charge have. per second. So VFX is how much मेहनत is going per second. Oh, हाँ. Yeah, makes sense because हर second को you have to make that scene एकदम perfect. Yeah, exactly. And you can't afford glitches क्योंकि फोन में नहीं पता चलेगा पर जब आप प्रीमियर करोगे हाँ. उधर टीवी पे दिखाओगे किसी को हाँ. तो उसमें पक्का दिखेगा. और ऐसे एंथुजियास्ट्स भी हैं VFX वाले जो नुक्स निकाल सकते हैं. I've seen that, yeah. Which is there in a scene where तीनों होते हैं साथ में और वो कहते हैं VFX तीनों साथ में जाएंगे तो VFX वाले की ऐसी तैसी हो जाएगी. When did the first idea come in your mind of making this? क्योंकि because Dhindora? Yeah, Dhindora. Like because like you used to do this selfie type videos and then you moved to this like proper. तो कब आया ये idea first time? ये आइडिया Because it makes so much sense ना to do because you are only all characters and all that. हाँ. And मैं झूठ नहीं बोलूँगा. So I've been trying to push things on YouTube India. I've been trying to make stuff which others have not done here, and she knows that. After a long time, I felt after seeing Dhindora कि यार ये चीज करना चाहिए था. This is something amazing. And Genuine. he got inspired by one of the scenes. And वो left right वाला पता है? हाँ. He made me. I recently did like a double role scene एक video के लिए. तो उससे इंस्पिरेशन भी आ गया कि या अगर भुवन कर सकते तो हम भी कर सकते हैं. वो हो सकता है. I mean इंस्पिरेशन ढिंडोरा का जब 15 कैरेक्टर हो गए थे 15-16 नहीं जब टीटू मामा हैड कम तो तब रियलाइज हो गया द काइंड ऑफ सो बेसिकली पहले जो टीजी था मेरा जो टारगेट ऑडियंस था जो यूट्यूब दिखाता है अक्सर वो था 13 to 24 Okay. which is like school going kids college going kids Yeah. वो था but then Titu Mama came and that went from 13 to 45 Oh. just because Mama character came in so all the mamas of the country they feel कि ये तो मैं ही हूँ मेरा भी भांजे के साथ यही कनेक्शन है मेरा भी दीदी के साथ यही कनेक्शन है और जीजा जी उतना ही सॉरी और जीजा जी को उतना ही पागल समझता हूँ मैं हाँ. तो सॉरी ये डीप हो गया. तो मैंने कहा ठीक है अगर होता है तो लेट्स अगर टीटू मामा को एक्सेप्ट कर लिया लोगों ने और ऐसा भी नहीं है कि एक कैरेक्टर ही फेमस है या एक कैरेक्टर ही चैनल चला रहा है पूरा. हाँ. समीर की अलग फॉलोइंग है बनछोड़ दास की अलग फॉलोइंग है बबलू जी के अलग क्रेजी वो हैं चाहने वाले कि ये भोले हमारे पक्का ही हमारे जीजा जी ऐसा है ये पक्का ऐसा है. जो मॉम का कैरेक्टर है उनके अलग फैंस हैं टीटू मामा का अलग है और फिर उसके बाद मंगलू आया तो मंगलू अलग बेवकूफ़ कैरेक्टर है. सो आई थॉट कि डूड इसके बाद भी इफ़ आई डोंट मूव आउट ऑफ दिस हाउस तो लानत है क्योंकि यू नेवर नो व्हेन द बॉडी स्टॉप्स responding the way it is responding right now and this shooting is a nightmare like I'm already tensed to shoot season 2 क्योंकि यार ये this requires a different state of mind. Of course. We were rehearsing यहीं पे इसी रूम में we were rehearsing. हमने यहाँ ग्रीन स्क्रीन लगा रखा था पीछे चारों तरफ just to do the पोहा वाला सीन. जब वो फर्स्ट एपिसोड में बाहर निकल के आता है पीछे से आता है भुवन बाहर वो बॉडी डबल नहीं मैं ही हूँ वो. ओके. कि जिस दिन में बड़ा सिंगर बन गया और बबलू जी ऐसे पोहा खाते यूं कर रहे हैं जिस दिन में बड़ा सिंगर बन गया दैट्स भुवन ओनली ही इज ओनली वॉकिंग आउट सो इट्स ग्रीन स्क्रीन बिहाइंड बबलू जी. सो वी आर प्रैक्टिसिंग दैट शॉट. यहाँ से भुवन यहाँ से चलता हुआ आता है और बबलू जी यहाँ बैठे हुए हैं और मम्मी वहाँ बैठी हुई है. सो वी हैड टू फिक्स कि ओके क्योंकि दिस इज द फर्स्ट शॉट वी आर डूइंग टुमारो द VFX शॉट. अगर ये हमने क्रैक कर लिया
तो शो करने में आसानी होगी. एंड ऑलवेज देयर वाज अ VFX गाय ऑन सेट. ही यूज्ड टू टेल कि डोंट डू दिस, लाइट वहाँ से मारो, लाइट यहाँ से मारो, मेक श्योर द ग्रीन स्क्रीन डजंट हैव रिंकल्स ऑन इट. तो ये सारी चीज़ें टेक्निकल चीज़ें यूज्ड टू टेक केयर. बट परफॉर्मेंस वाइज it's a nightmare. Why? Because there's mathematics involved in this. Is it? मतलब like to see कि दूसरा character का height वैसा मतलब? Nope. Then? Maths as in I have to count steps. So when I'm doing Bhuvan, I am saying my dialogue कि for example I'll show you something. मैं वो दिखाते समझाता हूँ. ठीक है? YouTube? Yeah. क्योंकि मैं ऐसा समझाऊंगा ना बहुत गलत हो जाएगा, समझ ही नहीं आएगा. So this scene. हाँ. यहाँ से अब सिंगल शॉट शुरू हो रहा है. हाँ. ठीक है. सो नाउ फर्स्ट आई बिकम मम्मी. ठीक है. अभी पूरे रूम में कोई नहीं है. इट्स जस्ट मी. सो मम्मी शूटिंग. सो नाउ आई एम वॉकिंग लाइक दिस बिकॉज आई एम काउंटिंग मम्मी स्टेप्स. हाँ. So I am saying the dialogue and counting my steps. Got it. So this I cross the snooker table. It's the 6th count. That's the 6th count for Bhuvan to enter and look at mummy. I know this scene. It was a one take. पूरा उसमें characters change होता है. So basically अभी for me it's just mummy and Bhuvan. यहाँ कोई नहीं बैठा हुआ, कोई आदमी नहीं है. We have recorded Bhuvan first. We have recorded mummy first. So mummy leads to Bhuvan. Reacting and taking dialogues. Bhuvan is now hypothetically reacting to what Bancho will say. Oh. So I don't know कि Bancho किस तरह deliver करेगा. ये मैं react कर रहा हूँ. अब जब मैं भुवन कर देख कितना सिली साउंड कर रहा है, मैं जो समझा रहा हूँ, तो अब जब मैं भुवन प्ले करके डायलॉग बोल रहा हूँ तो मुझे इमेजिन करना है कि बनछोड़ दास किस तरह बोलेगा एंड आई हैव टू रिएक्ट टू दैट. Got it. And then while after becoming Banchor Das, I'll have to play Bhuvan's audio. Oh, yeah. So we have done very similar things ऐसा with like for example Babu Rao. I played Babu Rao and Akshay Kumar in the same Feri का मैं कर रहा था. But it's like because this is such a huge production and it has to be perfect. Like you have to think कि मैं properly eye level पे देख रहा हूँ कि ये सब चीजें. हमारे इधर से हो जाता है कि Babu Rao थोड़ा सा ऊपर देख रहा है अक्षय कुमार के, चल जाता है, मतलब वो चल, इधर of course ये सब चीजें नहीं चलती. Also क्योंकि it's a one take. It's a motion rig and it's only one machine in India which is owned by Shah Rukh Khan. Oh, and he gave it to you? Yeah, for a day, and he did charge. मतलब it's Red Chillies के पास है. Okay. So पूरा Red Chilli का team आया था. There are 15 people who are handling this machine. It records a motion, and then it keeps playing the same exact motion. Oh. So you have to be in sync with the camera, with your steps, with your maths, with your dialogues, and with your expressions. Oh. So that's how we shoot. This was the last shot of the schedule. This was the 41st day of shoot. Oh. इसके बाद रैप था शो. और रैप कैसे हुआ, सब प्ले कर दिया मैंने, सारे कैरेक्टर्स प्ले कर दिए. तो मैंने कहा सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन सा है इसमें, तो बोलते हैं बबलू जी, क्योंकि वो सो रहे हैं बेड पे. मैंने बबलू जी को डबल मत बनाओ, लेट बबलू जी बी बबलू जी, क्योंकि कैमरा बबलू जी पे आएगा अभी और ये चले जा रहा है. इट्स अ मोशन एंड नाउ ये बबलू जी हैं. ये मेरा लास्ट गेटअप था एंड आई स्लेप्ट. आई वाज स्लीपिंग थ्रू आउट कि चलो अब चिल करेंगे. So I do such things, not exact, of course not such big scale पे, but like 30 seconds का हो गया and उसमें ऐसे intense editing होता है, कुछ भी हो सकता है उसमें. And then I want my audience to honestly appreciate all these things, क्योंकि दिखने में ये बहुत easy लगता है कि चलो अक्षय कुमार आ गया, बाबू राव हो गया, but ये भी सोचो कि बाबू राव का भी कपड़ा बदलना पड़ा, अक्षय कुमार का भी, दोनों को सिंग करना पड़ा, लाइटिंग देखना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा. It is not that easy, even if it's for 30 seconds. Do you feel proper appreciation आया for everything? Are you happy with everything? Yeah, I mean the VFX team, the edit team, they got their due credit. सबको लोगों ने appreciate किया. हाँ. मतलब शो से ज़्यादा जब I remember जब ट्रेलर ड्रॉप हुआ तो ट्रेलर में ही लोगों ने बोला इसका VFX तो बहुत किलर होने वाला है. Yeah. And I sent it to the editor. I said, bro, it's gonna. We were in Dubai at that time जब ट्रेलर आया, and then all YouTubers were sitting in that house and we all were watching the trailer at the same time. Yeah. सही. Everyone sitting. And सब लोग बोले भुवन का ट्रेलर, मैं जब ब्रेकफास्ट खा रहा हूँ सब लोग भुवन का ट्रेलर आया. अरे टीवी पे लगा है सब. And the most exciting scene for me
बिकॉज मेरे को ऐसे लाइक कैमियोज वाले सीन बहुत पसंद है. हाँ. So I forgot his name. I'm so sorry. Anup Soni. Anup Soni. When he came, I was like, what? Yeah. More than that, क्या था वो? दिल से बुरा लगता है. That guy came. हाँ. So हम we were writing the show and I told Rohit कि let's find the boy. Oh. तो he said कैसे फाइंड करेंगे. मैंने कहा हमने आज तक लाइफ में भले ही जॉनी सिंस हो भले ही कोई और भी हो, वी हैव अप्रोच्ड एवरीवन ऑन सोशल मीडिया. अभी वो जमाने तो गए कि यू हैव टू अप्रोच वाया एजेंसी एंड दिस एंड दैट. सब इंस्टाग्राम देखते हैं, जो बोलता है मैं बहुत बिजी हूँ वो बहुत झूठ बोल रहा है. कोई बिजी नहीं है. रात को सोने से पहले हर बंदा इंस्टाग्राम चेक करता है, डीएम चेक करता है. सो जब हम लिख रहे थे आई टोल्ड रोहित कि लेट्स डीएम दिस गाय. सो मैंने देवराज को सर्च किया. देवराज पटेल है उनका नाम. उनको मैंने इंस्टाग्राम पे सर्च किया एंड आई टेक्सटेड हिम कि देवराज हेलो कैसे हो, कुछ बात करनी है. Imagine you texted him. Yeah. Imagine getting a direct DM from Bhuvan. अब ये सुनो. देवराज कैसे हो, कुछ बात करनी है, क्वेश्चन मार्क ऐसे करके लिखा. सो रिप्लाई आता है सामने से, हेलो भैया ये देवराज का फैन अकाउंट है, मैं आपको उसका नंबर दे रहा हूँ. ये रियल आईडी है, नंबर नहीं, ये रियल आईडी है, आप उनसे बात कर लीजिए. तो मैंने उस आईडी पे जाके वापस सेम टेक्स्ट उसको लिखा एंड देन फिर उसको नंबर दिया रोहित का एंड देन ही गॉट इन टच विद रोहित. वी मेड श्योर कि इस डेट्स पे वी कॉल हिम टू मुंबई टू शूट एंड दैट्स हाउ वी शॉट विद हिम. अनूप सोनी सर की जहाँ तक बात है, सो द फर्स्ट नेम विच वी रोट outside of my characters was Anup sir's character. We wanted him to play a cameo so desperately. Also, we had multiple cameos in it. We had Varun Dhawan's cameo in it, which didn't happen because of some reasons and because of वो एक दिन का costing बहुत ज़्यादा पड़ रहा था and we couldn't take it and it was like a scene which because these rumors I heard नहीं जो ना भी होता scene में तो फर्क नहीं पड़ता. समझ रहे हो? It wasn't adding value to the scene. Got it. Though we had spoken to him about this और उन्हीं के किसी इंटरव्यू में मैंने बोला था कि ढिंडोरा में आप आना, प्लीज एक कैमियो करना. तो we had agreed to it. Everything was nice, but then we chose to take that scene off. तो कभी ऐसे जाके आगे मिथपैट वगैरह का ये हुआ एंड किसी ने आपको season बोला सीजन 2 करेंगे ना, किसी ने आपको बोला कि कॉस्टिंग बहुत हाई है, आप डायरेक्ट उनको डीएम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कोई कॉस्टिंग कुछ नहीं. तो ये वरुण का था. Then we met Jackie Shroff. We traveled like कहाँ बहुत दूर, मीरा रोड के भी आगे कहीं सेट लगा हुआ था उनका. And he was shooting there and क्या बोलता है? we went there. We said no sir, आलू क्या खाएगा? मैंने कहा सर कुछ नहीं, हाँ बैठना रहा. ऐसे करके उन्होंने बात करी. That's how he speaks and I'm like किसको बोल रहे, किसको, मैंने क्या किया? That's how he talks. तो उन्होंने बात करी, फिर उन्होंने बोला हाँ वीडियो क्या चाहिए. तो मैंने कहा सर एक कैमियो है. यार क्या पोलियो कराएगा क्या? तो हाउ डज ही नो अबाउट दिस? सो लाइक अबे यार मेरे पास जब कोई ऐसा काम लेके आता है ना एक दिन का तो समझ जाने का कि वो पोलियो का ऐड है. मैं सिर्फ सीन तो सुनो, क्या चल सुना. तो मैंने कहा कि सो देयर वाज दिस सीन कि भुवन एंड मम्मी दे आर वाचिंग टीवी आउटसाइड हॉस्पिटल, एज इन हॉस्पिटल के कॉरिडोर में लगे रहते हैं ना टीवी, उस पे जैकी दादा अभी बोल रहे हैं कि पोलियो की खुराक, और अभी भी फंबलिंग, ही इज नॉट मेकिंग सेंस और ही इज नॉट गिविंग द फाइनल टेक. एंड भुवन इज लाइक कि मम्मी कैसे सब चेंज हो गया ना. एंड मम्मी से हाँ 20 साल हो गए अभी तक नहीं बोल पा रहे. तो दिस वाज अ सीन. So he said कि नहीं यार I won't be comfortable in doing that. And we were like good, at least we asked. वो लाइफ में रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि यार काश पूछ लेते. For the boss's role जो इश्तियाक सर ने किया है, उसके लिए we had gone to Vijay Raj sir, we had gone to Johnny Lever sir. We even spoke to him about it, but he had some other dates. Okay. And then we spoke to not Rajpal sir, but you must have tried Shah Rukh also, right? Did you? No, we wanted him to share the trailer. Okay. Or be at the premiere for like 5 minutes or something. Yeah. But हाँ बस इसके अलावा तो और कोई कैमियोस सोचे भी नहीं थे. ये थे कैमियोस कि ये कैमियोस हैं, और अनूप सर हैज टू बी कांस्टेंट. Yeah.
so I always keep worrying कि YouTube का क्या होगा, because मैं तो 2 साल हो गए and I'm like कि यार कभी YouTube पे you know that 2 out of 1 video 2 out of 10 होता है, 3 out of 10 videos जाते हैं and all that, तो मेरे को आफ्टर एवरी वीडियो ऐसा एंग्जाइटी रहता है कि यार ये गिरा क्यों वीडियो, अभी मेरा चलेगा ना YouTube, ये होगा वो होगा. What is, because you are at now at the top and you have achieved so much, you're so famous. What is your perspective about all this? I'm glad I came before Jio. Oh. I'm thankful कि जियो से पहले आ गया मैं, तो पता चल गया मुझे कि कितने लोग जेन्युइनली देखना चाहते हैं. अच्छा. I used to get messages whenever I uploaded a video. I used to get messages, प्लीज़ कल मत डालो क्योंकि आज मेरा नेट पैक ख़त्म होने वाला है. हाँ. आप प्लीज़ परसों डालो वीडियो. Hmm. एंड देन आई यूज्ड टू डू दैट. Oh. आई यूज्ड टू अपलोड 2 दिन बाद. फिक्स नहीं होता. डिंडोरा के थर्सडे किया हमने. हाँ. Are you worried about like this algorithm? Does it affect you at this point also, or because I'm telling you, it genuinely affects me a lot? I get so what you're saying. How do I deal with कि this? 2 out of 10, हाँ, 3 हाँ. out of 10. It is there to play with your head, Okay. and this is all in their hand. हाँ. तो ढिंडोरा का भी ऐसे ही होगा ना एपिसोड्स का, एक एपिसोड एकदम टॉप पे होगा, दूसरा ऐसे हुआ. Also, I blatantly say that ads हैं डिंडोरा पे, हाँ हाँ. क्योंकि ये बनाने में जो लगी है, you have to make the show reach a certain number of people, Yeah. and these are all impressions वाले. Yeah, These are not views लेने वाले ads. Got it. ये एपिसोड्स दिखाए गए हैं लोगों को इंडिया में ही. वी हैव नॉट गॉन आउटसाइड इंडिया की मोरक्को के कमेंट्स हैं या अरब के कमेंट्स हैं इसमें. Yeah. इंडिया में ही लोगों तक पहुंचे हैं. आई रिमेंबर अ 60-year-old लेडी डीएमिंग मी ऑन इंस्टाग्राम सेइंग कि बेटा आज आपका हिंदुस्तान टाइम्स में फ्रंट पेज पे आया है. चाय पीते पीते मैंने उसको स्कैन किया, मैं आपके एपिसोड पे गई, मैंने आपके 7 एपिसोड देख लिए. उस टाइम 7 एपिसोड आए थे. आई हैव किड्स ऑफ योर एज and I'm angry that they have never introduced me to you. Now that I have watched all 7 episodes, I'm planning tonight to watch all your previous episodes. Got it. That is so sweet. This is what I wanted. Oh. This is what we wanted to do with marketing. Got it. Hence the buses, हाँ. the rickshaws. क्योंकि we wanted चलता फिरता होर्डिंग. बस एक चलता फिरता होर्डिंग है. हाँ. वो बस पता नहीं कितनी जगह जाएगा, कितने लोग देख लेंगे. ऐसा भी नहीं पढ़ना है उसको, एक बार याद रह जाएगा. मफलर वाला आदमी, मूछ वाला आदमी, Yeah. ढिंडोरा. तो ये सब चीजें हैं. तू जो कह रहे हो सही है वो, मतलब इट स्केयर्स, अच्छा. मतलब इट्स स्कैरी कि It is scary. हाउ वी आर Does it scare you right now also? हाँ, हाउ वी आर सो सबमिसिव टू दीज थिंग्स हाँ. दैट ऐसा लगता है कि ये नहीं होगा कल तो कैसे होगा. हाँ. पर वी नीड टू थिंक वी नीड टू बी ऑप्टिमिस्टिक इन अ वे कि फ्रैंकली YouTube नहीं भी होगा तो वी शुड नो हाउ टू सर्वाइव. I thought at this point you would be like that is like the perspective I came with. You must be like, because you're I would say legend, you must be fearless about anything right now. No, you're not fearless. ट्रेलर तुम दुबई में देख रहे थे, हाँ. मैं इधर देख रहा था. मेरी ऐसी तैसी हो रखी थी. मेरे को ऐसा लग रहा था लोग ये ना बोलते वही कर जो पहले करता था. Oh, okay. क्योंकि 7 महीने से कुछ नहीं आया चैनल पे. हाँ, yeah. 7 महीने बाद देयर इज अ थिंग ड्रॉपिंग कॉल्ड ढिंडोरा ट्रेलर. हाँ. एंड इसमें it's not, I knew it's not that kind of comedy that I do on my channel usually in my videos, because it's a story driven Got it. show. So you need to have a pace in comedy also. You can't just put jokes. वो फिर वो sketchy लगने लगेगा. हाँ. मेरे को एक्टिंग भी दिखानी है क्योंकि ये this is my profile, this is my audition Yeah. for my future projects. Yeah. So I asked this to Rohit also before we met you कि जो ढिंडोरा का because you're telling me this, जो ढिंडोरा you guys had imagined कि इतना लोग देखेंगे, ऐसे होगा, I feel उससे definitely ज़्यादा. How was the response like according to you? It's really nice. Views तो सबको दिखता ही है. हाँ. Views दिखते ही हैं. But did you expect this much buzz कि पूरा इंटरनेट खा जाएगा? I went to Hakim Alim. You know Hakim Alim? No. He's like a hairstylist. He's Yeah. a pretty Bollywoodish hairstylist, I know. and he does everyone's hair. Almost 85% hair in Bollywood he does. हाँ. So we met him. The first thing he said, यार तुम्हारे होर्डिंग तो सब जगह लगे हुए. हो गया मेरा काम. आप शो देखो या ना देखो, Got it. होर्डिंग दिख गए ना आपको, मतलब हमने सही जगह लगाए होर्डिंग, सही जगह पहुंचा है शो. और अभी वो आंटी का एग्जाम्पल दिया मैंने. हाँ. ऐसे काफी DMs हैं. Got it. Wanted to ask you this क्योंकि since the start of YouTube
पैसा वैसा मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता था. Nothing else mattered to me as much as like I wanted, because I used to watch Shahrukh Khan ka these Mannat ke idhar ke videos and all that, and legit used to cry while watching it. I don't think a lot of people cry after seeing that. I used to cry after watching all this. So I know कि I'm here on YouTube to become like really famous. Famous in the sense कि मैं रास्ते पे चल रहा हूँ तो like I should not be able to walk वैसा. And from few of your friends only, like आशीष हो गए, बी यूनिक हो गए, मेरे को ये समझ गया है कि you guys ऐसा, तुम लोग का ऐसा है कि तुम लोग रास्ते पे चल नहीं पाते. I can walk on road right now, but you guys can't walk on road also right now. How does it feel like? How to even reach that level of fame? Because that is really something I'm chasing. I think it will come with time. That happens to you, but you can't walk on the road. No. I'd seen one video जिसमें आप मॉल पे गए थे और पूरा मॉल बंद कर दिया था. I do क्या? go to malls. फेस पे ये लगा के. There's a way. अच्छा. मैं मास्क 6 साल से लगा रहा हूँ. पर क्या होता है मतलब like मास्क तो अभी आया. मैं पहले आउटकास्ट फील होता था मुझे. लोग कहते थे क्या मास्क लगा रखा है इसने. हाँ. Is it like actually like this? मतलब like you get out of your house and लोग आ जाते हैं. कैसा होता है मतलब क्या? मतलब I just want to know about it because it's very fascinating for me. No one bothers you. At the end of the day, it's just about a selfie. That's it. Look, I'll ask you like it's about a selfie, but like because मेरा कैसे है कि मैं कभी मॉल में गया था, I'm like looking at people कि वो पहचान रहा है, मैं खुद देखता हूँ कि वो पहचान रहा है, honestly बता रहा हूँ, because it's honestly like a start for me. I'm okay with all this. आपका कैसे होता है? Like I just want to know because it's very fascinating for me. You enter the mall and then immediately लोग आने लगते, क्या होता है scene? So I haven't tried it. हाँ. Oh. I got to know what BBK Vines has done when that was my last metro trip. Oh. Just Delhi metro. मैं ट्रेन में नहीं चढ़ा हूँ अभी. मैं टिकट लेके प्लेटफॉर्म पे नीचे उतरा हूँ. I have to rush and I can't take cab. I can't take गाड़ी because वहाँ कुछ जाम लगा है, कुछ लगा है. तो metro is the easiest way I can reach. So I reach airport. Like you said, कि you can look at people. Now I can see. I can look at their faces and I can tell if they watch me or not. हाँ. वो उतना एक्सपीरियंस हो गया अभी. हाँ. लोगों की देखने से पता चल जाता है. मतलब चेहरा देखने से. Yeah. उनके आपको पहचानने से नहीं. हाँ समझता हूँ. Even if there is a guy walking, I can tell if he watches me or not. Oh, okay. Yeah. I can tell. Okay. हमें अपनी ऑडियंस पता है. Yeah. So I'm there and मास्क नहीं था. Oh, okay. I used to wear उल्टा कैप जैसे अभी आपने पहना. हाँ. तो मैं खड़ा हूँ और वो मेट्रो में 8 लड़के कॉलेज के चलते हुए आ रहे हैं. उसमें से एक ने बोला ये तो भुवन जैसा लग रहा है. तो उन्होंने बोला नहीं वो क्या करेगा मेट्रो में आके. एंड आई एम लिसनिंग एंड आई एम एंजॉइंग इट. फर्स्ट टाइम हो रहा है ना मेरे साथ लाइफ में. आई एम एंजॉइंग इट. सो आई एम एंजॉइंग इट. आई एम एंजॉइंग ऑल दिस. सो दिस गाय कम्स एंड ही आस्क्स मी कि ऐसे करके पीछे टैप किया उसने बोला भुवन. अरे क्या? दे स्टार्टेड स्क्रीमिंग. उनको देख के जो आसपास लोग थे they recognized. They did multiplied. उस दिन the cops जो ऊपर चेकिंग पे रहते हैं, they had to run down because they thought कोई पिट रहा है. So they had to pull me out of that crowd of 85-90 people and I came back. My shirt was torn. I had scratches on my back. बाप रे. आई को लगा मैं पिट के आया हूँ. क्या तेरे को बोला था गाली मत दिया कर. मैंने कहा किसी मुझे मारा नहीं है. मैं this all happened in metro. Wow. So that was the time when I realized कि it can go horribly wrong and it will be like an inconvenience for other people. Yeah. But do you miss like doing these normal things? Yeah, actually, yeah. नहीं, that's the beauty of it. I do. हाँ, but you just. I do. अरे पर मुंह पे ये बन. I know. And frankly, जब तक मैं ना चाहूँ तब तक कोई नहीं पहचान सकता. Oh. Yeah, that's that. So the people. So what I do, I'll tell you this. मतलब I don't mind saying this. When I'm exiting a place, I remove my mask. मैं भी अभी वही बोलने वाला था सर. मैं मास्क पहनता हूँ, इसमें मेरा लोगो है. हाँ. So when I'm exiting a place, सब कुछ हो गया. अपने मन से आपने कर लिया. आपके दोस्त भी तो हैं. क्यों सफर? वाई डू यू वांट टू गिव देम दैट नोशन कि अब इसके साथ नहीं घूम सकते बाहर. पेरेंट्स को ये नोशन क्यों देना कि अब हमारी वो वाली लाइफ बंद हो गई हो. अब वो थोड़ी फेमस हुए हैं. दे डिडंट कॉल फॉर दिस, दे डिडंट आस्क फॉर दिस. यू आर डूइंग इट एंड इट्स योर थिंग, इट्स योर विश. You wanted to be famous, right? You wanted fame, na? I know few YouTubers who don't want fame. I don't know about fame. I didn't know fame existed. I just knew that I had so much in my head that I wanted people to listen to. Oh, okay. I had so much on my
bucket list कि I wanted to do this, I wanted to do this, and those weren't Bollywood goals. They weren't कि मेरे को बॉलीवुड करना है, मुझे यूट्यूब करना है. मेरे को ऐसा है, मेरे दिमाग में एक सही जोक आया है, इसको ना ऐसे बना के ऐसे डाल देता. तब व्यूज थोड़ी आ रहे थे. हाँ. 5-6 लोग देख रहे थे तभी. यूट्यूब था भी नहीं, पता भी नहीं था कि है. तो वो वाली बात है, अगर आप नहीं चाहो कोई आपको पहचाने तो कोई नहीं पहचान सकता आपको. ये जो लोग मॉब हो जाते हैं ना, वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो चाहते हैं. तो वो हिंट देते हैं. आपको ये हुआ पेपराजी मोमेंट हुआ आपके साथ? हाँ होते हुआ होंगे ना? हाँ हुआ है. आपने कभी हुआ बोला है. किसी और के लिए खड़े रहते हैं, मेरे को देख लेते हैं. ऑनेस्टली मैंने ऐसी स्टोरीज सुने कि कभी कभी खुद ही बुलाते हैं कभी पेपराजी. ऑलवेज paparazzi culture is basically business. So if an ex-actor, for example, an actor is landing, so they'll call them कि I have this flight, I'm coming to this airport. If you have paps around there, tell them to come. Okay. And we look at them as if हाँ. they are being clicked without अरे permission. sir, नहीं, they are being clicked without permission. हाँ. ऐसा दिखता है ना हमें. Yeah. नहीं, but कभी-कभी actors they are very rude to paps and they are like just don't do it and all. So are they like I don't know. I haven't come across any actor who's like that. yeah. Who are rude. और मूड भी तो होता है सबका यार. हाँ. मेरे को ऐसा कभी-कभी लगता है someone who's traveled like 11-12 hours in a flight. How can लैंड होते ही फ्लैश कैसे होता है? हाँ. एंड देन मजे की बात ये है कि दे आस्क यू टू वॉक स्लो एंड आई वॉक रियली फास्ट बिकॉज ऑफ लॉन्ग लेग्स एंड देन दे विल आस्क यू बिकॉज दे आर वॉकिंग बैकवर्ड्स सो दे कांट रन पीछे सो दे वांट यू टू वॉक स्लो विद देम एंड दैट्स वेयर द फेकनेस कम्स इन एंड दैट्स व्हाट आई डोंट लाइक कि आई कांट वॉक इतना स्लो बिकॉज आई एम ऑकवर्ड एंड आई नो कि अब वो लोग आजू बाजू के मुझे देख रहे हैं जो मैं नहीं चाहता. कॉन्शियस हो जाते हो ना आप कि लोग ये ना समझे बेवकूफ है, इसके पीछे क्यों लगे हैं, ये क्या है, वो चाहिए ही नहीं अपने को. मैंने तो मांगा ही नहीं है सब. Anyone I've asked about like किसी को मैंने पूछा कि how is like शाहरुख in real life वगैरह, and who has met शाहरुख, सबने मुझे यही बोला है कि he's a very humble guy, he's a very nice guy. किसी ने भी मेरे को कभी अभी तक negative review दिया ही नहीं है. And same has happened with you honestly. Whenever I've asked how is Bhuvan in real life, everyone has told me that he's very humble, शांति होता है हमेशा, पार्टीज में वगैरह भी शांति होता है. एंड मुझे तो मल्टीपल टाइम लोगों ने ये भी बोला है कि पार्टीज में कुछ भी लाइक ड्रिंक्स विंक्स का सीन होगा, भुवन साइड में होता है रेड बुल के साथ हाथ में. या वो रेड बुल भी सोशली एक्सेप्टेबल रहने के लिए. हाँ, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे हैव टोल्ड मी. क्योंकि वो बियर जैसी दिखती है. कांच के गिलास में ले लो, बियर जैसी लगती है. I wanted to ask you this, and बहुत टाइम से मेरे को ये पूछना था किसी बड़े यूट्यूबर को, मैंने कभी पूछा नहीं क्योंकि आई डोंट नो बड़े यूट्यूबर्स का क्यों ऐसे होता है कि बहुत कम पोस्ट करते हैं. 2 महीने में एक वीडियो, 1 महीने में, 3 महीने में एक. एंड आई हैव नेवर आस्क्ड दिस कि व्हाट डू यू गाइस डू इन मिडिल. लाइक 3 महीने में एक वीडियो आ रहा है, 2 महीने में एक वीडियो आ रहा है, बीच में तुम लोग अभी, क्योंकि मेरा ऐसा कि मैं 5 दिन वीडियो नहीं डाला ना, मेरे को कुछ तो होने लगता है अंदर से कि यार चैनल को कुछ तो हुआ है. तुम लोग अभी 2 मंथ्स कुछ डालते नहीं हो, तभी क्या होता है लाइक बीच में व्हाट ऑल डू यू डू बीच में वैसा? वी ड्रीमिंग of like अच्छा, what do you want to do? Oh, we're planning that. I'm speaking for myself. हाँ. the next video Also a project also. I feel that gives you a lot of mind space because even I feel Lot like of mind if I don't rush myself so much 5 दिन में, if I don't rush myself I can make better things. But I'm in this thing कि नहीं मेरे को करना भी है पोस्ट यार, अभी algorithm पीछे डाल देगा because मेरा ऐसा है कि मैं अभी से गेमिंग कंटेंट है बहुत डालते हैं लोग, तो मुझे भी डालना चाहिए. बट मेरा ऐसा भी, मेरे पास बहुत आइडियाज है विच आर रियली स्पेशल, सो लेट मी जस्ट टेक सम टाइम एंड उससे माइंड भी रिफ्रेश हो जाता है अच्छे से आफ्टर एवरी दिस. I think taking time is very important. Frankly, 7 months के बाद जो डाला ट्रेलर, we were sure कि views नहीं आएंगे. I'll go. He's like me only यार. I'll go. हाँ, like we thought. कुछ नहीं I'll go. कुछ नहीं I'll go. It's a scam. if people love you they'll watch it. Yeah, if the product is good. अच्छे काम को कौन इग्नोर कर सकता है? अच्छा काम, अगर आपने अच्छा काम किया है, चाह के भी नहीं इग्नोर होता. कोई जो आपको हेट भी करता है ना, वो हेटरेट की वजह से आएगा ही देखने एक बार. अपने को हेटरेट से थोड़ी मतलब, अपने को व्यू से मतलब है ना. क्लिक कर निकल. क्लिक कर, थोड़ा ऐड दे, निकल. हाँ. तो ये चक्कर है. मतलब आई अंडरस्टैंड वेयर यू कमिंग फ्रॉम कि कैसे करें, ब्रेक नहीं है, एल्गो का दिक्कत है, पर ये रहेगा यार, हमेशा रहेगा. ये दिस इज व्हाट वी हैव चोजन. दैट्स हाउ इट्स गोना बी.
I like how he's also like, you know, मतलब even if you are doing all these big things, I'm seeing a bit of me in you. I'm seeing that YouTuber का जो scare factor होता है, वो सब चीजें I'm seeing in you. I didn't expect that. That's what I said. मैं यहाँ पे आता सोच के कि you must be fearless. You must have gone to that Bollywood का zone now. कि चलो Bollywood का zone in the sense कि now there's nothing like you need to be worried about. Whatever you do is going to get attention, and whatever you do is going to be big. ऐसा I don't think है in your mind. In your mind you are still like a mythpat only who's worried कि चलो अगला वीडियो काम करेगा कि नहीं करेगा. Don't you think so? Yeah. Same. I'm worried because Dindora was supposed to be on YouTube. हाँ अगर डिंडोरा किसी और प्लेटफॉर्म पे होता, डरता नहीं मैं इतना. हाँ उधर फर्क नहीं पड़ता इससे. हाँ ये मेरा गढ़ है. हाँ दिस इज माय बैटल स्पेस. Yeah. अगर आप अपने होम ग्राउंड पे शाइन नहीं करोगे हाँ. तो किधर करोगे? So when is season 2 का shooting starting? भाई सीजन 2 एक लाइन नहीं लिखा है मैंने. Oh. So it's gonna be really disappointing for people. It's gonna take a lot of time. Because we're shooting something else and पूरा next साल उसमें जाने वाला है. Oh, there's another series coming. Yeah. उसमें भी ऐसा complex है? Don't tell me. क्योंकि it will be No, थोड़ा उसमें it's just acting. हाँ, it's just acting. Yeah, that's good. It's not YouTube. कि कितना ये हो जाएगा? It's drama thriller. I wanted to ask you कि वो 8 months हो गया since your last selfie type video. हाँ. Do you plan to do that again? Because frankly, I don't want to go to that house again. Oh. It has a lot of Aiwaga memories. Oh, okay. So अभी थोड़ा courage तो निकालना पड़ेगा. But now I don't want to. I don't know. It has that special thing. हाँ. I might not. पता नहीं अभी. हाँ, because मुझे कोई तो बोला था कि till date you still use that same old phone. Same. ऐसा भी नहीं Same. कि It's Pixel 1. हाँ, वही people upgrade to like camera quality कुछ नहीं. Same. ना भाई Pixel 1 वो इतना सही फोन है ना. हाँ. क्या उसमें कॉलिंग नहीं होती and it looks the same. Yeah. एकदम चमकता है वो फोन. उसमें स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है. एक स्क्रैच नहीं है. हाँ. क्योंकि I record. हाँ. I transfer data and then I put it back again पेटी पैक. हाँ. और ऐसा भी नहीं रोज शूट करता हूँ. अच्छा okay got it. तो हर बार निकाल के नया तो हाथ भी नहीं दुखता है हॉर्ड. हाँ अब you can hold hand like this. या अभी पता नहीं अभी 8-9 महीने हो गए अभी क्या पता है हाथ कांपने लग जाए. That's what I was curious about. कि will you come back to that format again? Because people are used to that I format. might not. But now I don't want people to. अभी नियॉन मैन को न्यूज़ मिल गया. नहीं, frankly I don't want people to get confused between these two timelines. Yeah. लोग ये ना सोचे कि अब तो बबलू जी अमीर हो गए तो इस घर में क्यों हैं, समझ रहा है? हाँ, that is also अभी. हाँ. फिर वो बातें भी नहीं हो पाएंगी वैसी वाली मिडिल क्लास वाली. But then what is Neon Man? I'm giving you news. Is it the end for the old? क्योंकि timeline change हो गया ना. What will you do now? No. For the old format नहीं, of so I'll videos. start the video ना. वीडियो में क्या है? वीडियो में स्टार्ट करके बोल दूंगा कि ये डिंडोरा से पहले का है. बस it's a different timeline altogether. Okay, got it. मतलब people can expect those because you Yeah. have grown because of those videos ना, so people must be expecting कि हमें वैसा videos चाहिए. Also थोड़े बहुत ब्रांड वीडियोस भी जो हैं जो पेंडिंग है. हाँ, और वो उसमें करना of course आसान. वो हाँ मतलब करना पड़ेगा. वो करना पड़ेगा वैसे. हाँ. And I have to tell you that Ajnabi, like the song. मेरा लिया मैं भी बोलूंगा. रुक मैं पहले बताता हूँ. मेरे लिए Spotify पे रैप पे हीर रांझा was this song. This and कैरी का वरदान मैं दोनों ये था. And you tell me. I love Hey Ranja like next level, but अजनबी के टाइम में ट्रैवल करती थी ना ऑफिस के लिए. हर दिन सुबह ट्रेन में बैठने के बाद फर्स्ट सॉन्ग अजनबी होता था. अरे नाइस. पूरा लिरिक्स मुझे याद था. एंड मैंने आई डोंट रिमेम्बर हीर रांझा कितने बार यूट्यूब पे देखा है. क्या लिखा है सॉन्ग. We didn't talk about that. So guys क्या हुआ था कि I think 1.5 साल हो गया and I was added. So तन्मय added me to this random group on WhatsApp जिसपे तन्मय का स्ट्रीम था and वो ग्रुप था जिसमें there was Carrie, there was Ashish, तन्मय and you were there and I was at 1 million subscribers or 800 के something like 1.5 million subscribers होंगे and no, you guys did not like really know me at that time. So मेरे लिए ऐसा हो गया मैं immediately इसको मैसेज किया कि नंबर मिल गया. कैरी का नंबर मिल गया, भुवन का नंबर मिल गया, आशीष का नंबर मिल गया क्योंकि मेरे को डायरेक्टली ग्रुप में ऐड कर दिया तो सबका नंबर मिल गया उधर. एंड आई वाज सो हैप्पी. उस दिन मैं स्ट्रीम कर रहा था सबके साथ. यू डिडंट कम बिकॉज़ यू आर नॉट वेल एट दैट टाइम. एंड आफ्टरवर्ड्स क्या हुआ कि इसका बर्थडे था एंड आई वांटेड टू गिव हर समथिंग बर्थडे के लिए. ये दैट्स व्हेन मुझे नंबर था. आई मैसेज्ड यू एक बड़ा मैसेज करके. मैं यूजुअली बड़े मैसेज करता हूँ तो लाइक द अदर पर्सन अंडरस्टैंड्स कि हाँ आई रियली वांट दैट वीडियो. आई मैसेज हिम अ बिग मैसेज एंड देन इन 1 hour ही सेंट मी अ वीडियो.
seemed a bit awkward in that video because I understand. हाँ, बोलना birthday difficult होता है. wishes वगैरह मेरे लिए awkward होता है हाँ, of course. कि क्या बोलूं. I still have it. Yeah. I keep repeating it. I send it to my friends. देखो भुवन ने मुझे wish कर दिया. And it is different, okay? Like you took my name, you wished me. It was like a video. It was. Thank you so much for that. Means so much. तब मैं आपको नहीं बता पाई, but now I'm telling you. Thank you so much. तेरा सब fan moments हो गया ना. मतलब what happened? Like 2 weeks back we met प्राजक्ता and उधर भी जाके पागल जैसे oh my god ये हो गया, पूरा हो गया था. And I knew कि भुवन आपके साथ भी ये same होने वाला है. Is there anybody else now? Or is done? I don't know. But ये इसका ऐसी है because I know that's why I started a podcast with her because I know if I give her the time she's just going to explode telling because she has so many stories to tell कि मैंने आपका ये देखा, मैंने आपको वो वीडियो देखा, ये करा, सब बोलते करने लगते. But did you observe today I was quiet because I can't still accept that he's stealing. So आता आपण एंड करूया पॉडकास्ट. मस्त झाला पॉडकास्ट, मला खूप मजा आली. मिळालं सगळं मिळालं. आय जस्ट वॉन्ट टू एंड दिस पॉडकास्ट लाईक मराठीमध्ये. सांगतो ना, मी सांगतो काय करायचं. हा पॉडकास्टला फॉलो करा. त्याच्या आधी तू पहिलं बोल की ढिंडोरा जाऊन YouTube. हाँ, ढिंडोरा जाऊन यूट्यूब पर तो बघायचं. आई थिंक सबने देख लिया है. नहीं देखा एक्चुअली, बहुत लोग नहीं देखा होगा तो भी वापस से एक बार जाके देखो फ्री में. वो देखो और मराठी मध्ये फॉलो करा सांगा पॉडकास्टला. द मिथपॅट पॉडकास्ट ला फॉलो करा सांगा. तो आज झालाय, जेन्युइनली आज हो गए. दिस इज एक्चुअली द टॉप पॉडकास्ट राइट नाउ ऑन द चार्ट्स एंड आज तो हो ही गया टॉप पॉडकास्ट. मेरे को से एक चीज याद आई, इफ आई कैन शेयर. या सो माय फर्स्ट एवर टीवी अपीयरेंस वाज ऑन डीडी भारती. Oh. First ever thing. Only I have seen that. Only I have seen that. It's not on YouTube. It's nowhere. That was a Shah Rukh Khan special. मतलब 8 years ago. You were with Shah Rukh Khan? No. Then I sang his songs on DD Bharati. With a it was a band. It was like a studio, closed studio. और उसमें एक काउन पे था बंदा, एक कीबोर्ड्स पे था. एंड वी वर सिंगिंग शाहरुख का मेडली एंड इट वाज फॉर 8 minutes का था. एंड उसमें टिपिकल वैसी की गायक भुवन नई दिल्ली से एक, और वो 2 नवंबर को टेलीकास्ट हुआ. एंड दे प्रेजेंटेड इट एज अ शाहरुख स्पेशल. घर पे हंगामा मचा दिया मैंने कहा शाहरुख स्पेशल पे मैं गाना गा रहा हूँ, सबको लगा शाहरुख खान का साथ में. मैंने कहा फंस गया मैं, ये तो मैं गया. अब वो शो आया, सब लोग बैठे हुए ड्राइंग रूम में और मैं गिल्ट में मरा जा रहा हूँ कि इनको नहीं दिखेगा और नहीं दिखा. क्या तो ऐसे देख शाहरुख नहीं था ना वो, वहाँ से मुझे पता नहीं था वो. बाकी सब ऐसे देख रहे थे, सारे मेरे दोस्त ऐसे देख रहे थे जैसे शाहरुख के साथ इसने स्पेशल किया है. सबके में से है सही है, बढ़िया. हाँ, और उस टाइम मुझे लगा यार पहले ढोल क्यों पीट दिया मैंने. तो ऐसे हो रहा था कि I think that was inspired from your journey. पहले ढिंडोरा ने that one line was very nice. For the first time when I met him, हाँ, then वो डीडी भारती वाला एपिसोड I told him कि तब उन्होंने बोला कि it's all manifestation. It's all manifestations. Yeah. I truly understand. भुवन तुम्हें हमेशा मिलके मुझे बहुत अच्छा लगता है. सर आपको किसी भी ढिंडोरा के किसी भी एपिसोड में इफ यू वांट शाहरुख वॉइस, इफ यू वांट ऋतिक रोशन्स वॉइस, इफ यू वांट अमिताभ बच्चन का आवाज, किसी का भी आवाज या फिर अक्षय कुमार का आवाज चाहिए होगा तो प्लीज कॉन्टैक्ट. ये आदमी मेरे से ज्यादा स्प्लिट है. I also thought of this. The same, not मतलब इतना complex level. I've never thought of all this production and all that. मेरे को ऐसा लग, I don't like to delegate work and that's my problem. I know. Like I just feel like मेरे को सब कुछ control में चाहिए. But I've thought of this कि what if I take all my characters mimicry का, they are not my characters, they are themselves, but I play all of them and I make something. It could happen, or you could do something on audio. Yeah. Also na. Yeah. And I'm sure you must be doing that. We have planned few podcasts like 2-3 stories. Yeah. Horror stories. Yeah. Horror stories narrated by Hrithik. Yeah. हाँ. Crazy scene. Good idea. उसका कुछ तो था. एक दिन कॉमेडी. एक दिन मैं रात को जा रहा था, वहां पे धूप नहीं थी, तो मुझे सामने से जादू दिखा, लेकिन जादू तो धूप में ही आता है. I just don't understand क्या हो गया. It was not fantastic. and it will work like wonders if it's not funny. If it's not funny, it shouldn't be funny. It should be horror. Oh, yeah. भाई ये टैप ही नहीं करता है यार कोई ये चीज. You also must have thought ना something not funny, but this. हाँ, this next show that I'm talking about. अच्छा, it is like that.
That show we have written with Dindora only, side by side. Oh, okay. हाँ, दोनों को टाइम लग गया साला. How far we have come, Mithilesh. पार क्या, नियर हो गया 18th episode पे भुवन बाम. That's what I'm saying. What like, is bigger than this? Starting from Us both, me. we both started. इसके साथ चालू किया था. But anyway, guys, that's it for the podcast. तुम्ही मराठीमध्ये फक्त फॉलो करा सांगा. जेवढे पण लोक हे ऐकतायत त्यांना मला सांगायचं की ह्या पॉडकास्टला सबस्क्राईब करा, फॉलो करा, द मिथ पॅट पॉडकास्ट. आणि दर मंगळवारी दर मंगळवारी हा पॉडकास्ट येणार. ऐका, इयरफोन्स लावून ऐका. आणि झालं तेवढंच. थँक्यू सो मच फॉर बिईंग ऑन द पॉडकास्ट. Thank you so much. थँक्यू. आप सुन रहे थे द